So let's look at this problem, flip the bit. So in this problem, we are actually given two strings, A and B. Both are binary strings, which means that they only contain 0 and 1. And what you have to do is you have to just say yes or no if it's possible to convert string A into string B. Now, how do we do that conversion? So in the first operation, so you have to select prefixes and then you have to flip the bits. So to be much more clear, let's look at an example. So if you look at the problem statement, they have clearly mentioned that in one operation, you can select any prefix of A with equal number of 0 and 1 symbols. So given the string A, you will select a prefix which has equal number of 0 and 1s, and then you will flip the bits of that particular prefix. For example, in this first operation, given the string was A, so this is just an example, so therefore just don't consider string B or anything like that. So in the example, they are given you a string A, which is this. So how they are converting this particular string, like this particular string into this particular string is, they have first selected a prefix of length 8, for example this particular prefix, and if you look at that prefix carefully, it has equal number of zeros and ones, that is 4 zeros and 4 ones. And then eventually they selected the first two characters 0 and 1, and then they converted this whole string, this particular string, into this particular string. Now that's why if given this was A and to convert this to this particular string B, that you can say is possible, which is actually the first test case. So in the first test case, if you see, this is the, so this is that string and B is actually this only. That's why they have given you that example, so that you can better understand why the answer for the first test case here was yes. So now how to solve this, right? So let's get into a whiteboard and understand how will you actually make changes to a particular string, like what all changes are possible. Okay, so just consider that you are given this particular string A, ठीक है? For now don't think about what is B, blah blah, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? What you have to think over here is इसमें से कौन कौन से prefix you can select. Now when I say कौन कौन से prefix you can select, just look at the string closely. जीरोज़ और वंस का काउंट रखते जाओ, ठीक है? तो सपोज जीरो का काउंट मैं यहाँ रखता हूँ, वन का काउंट आई कीप हियर, कीप काउंटिंग. सो यार एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, यहाँ पे जीरो का काउंट +1, यहाँ पे 1 आया अगेन +1, यहाँ पे 1 आया अगेन +1 फॉर 1, यहाँ पे इट इज़ 1, अगेन यू हैव अ 0, so +1, again you have a 1, so +1. till now we don't have any index where zeros and ones दोनों का काउंट सेम है. देन अगेन तुम्हारे पास यहाँ पर एक 0 आया, सो यू डिड अ +1, यहाँ पर अगेन एक 0 आया +1. सो जैसे ही तुम्हें एक इंडेक्स मिल गया जहाँ पे दोनों का काउंट सेम है, दैट मीन्स ये वाला जो इंडेक्स है, राइट, ये वाला जो इंडेक्स है, दिस यू कैन मार्क, यू कैन जस्ट मार्क दिस इंडेक्स. आई टेल यू वाई, यू कैन जस्ट मार्क दिस इंडेक्स फॉर नाउ, एंड आगे जाके वी कैन सी हमें और कोई इंडेक्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले. एंड इफ़ यू सी, सॉरी एक चीज़ हमने मिस कर दी, ये वाला जो इंडेक्स था, ये वाला इंडेक्स, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट इंडेक्स, बिकॉज इस यहाँ तक इफ़ यू सी इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ तक इफ़ यू सी जीरो का काउंट भी 1 है एंड 1 का काउंट भी 1 है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वैलिड इंडेक्स. नाउ लेट्स सी हाउ डू वी यूज़ दिस पर्टिकुलर फीचर, ठीक है? अभी थोड़ी देर के लिए अगेन प्रीफिक्स वाला पार्ट भूल जाओ. मैं तुम्हें अगर एक रैंडम स्ट्रिंग देता हूँ, ए ले लो, कुछ भी एक रैंडम स्ट्रिंग है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है. इफ़ आई जस्ट टेल यू कि इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू चेंज दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लिप दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग. मैंने बस तुमसे इतना क्वेश्चन पूछा है कि एक ए स्ट्रिंग है, अभी डोंट फोकस ऑन व्हाट दैट ए स्ट्रिंग इज़. आई जस्ट आस्क्ड यू इफ इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ए का वो वाला जो सब स्ट्रिंग है, कैन यू फ्लिप दैट, ठीक है? लाइक इफ इट्स 101, कैन यू कन्वर्ट दिस टू 010, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट और नॉट? So obviously what you'll say is it is obviously possible if you can flip this particular prefix and then again you can flip this particular prefix. Make sense, right? कॉमन सेंस यही है, क्योंकि तुम चाहते हो कि ये वाला मैं फ्लिप करूँगा, तो मेरा ऑब्वियसली जब मैं ये वाला फ्लिप करूँगा मेरा ये वाला पार्ट फ्लिप हो जाएगा, देन अगेन आई फ्लिप द जो उसके साथ एक कोलैटरल डैमेज हुआ था अपना ये वाला पार्ट, तो तुम उसको भी फिर रिवर्स लाइक एक और बार फ्लिप कर दोगे, सो दैट इट इज़ बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. सो इवेंचुअली यू विल हैव दिस पर्टिकुलर जो तुम्हारा सबस्ट्रिंग है वो फ्लिप हो जाएगा. सो थिंक यही वाला लॉजिक एक बार इस प्रॉब्लम में लगाओ, क्योंकि अभी अगर ए ले लो कुछ भी है 010110011 एंड बी ले लो कुछ भी है 0100001, ठीक है? इतना पार्ट मैंने अलग कर दिया, इतना पार्ट, ठीक है? हाँ, इतना पार्ट मैंने अलग कर दिया, देन अगेन इतना पार्ट मैंने सेम कर दिया. सो अभी तुम्हें पता चल गया तुम्हें ये वाला पार्ट चेंज करना है, राइट? तुम्हें ये 3 के सबस्ट्रिंग को फ्लिप करना है. अभी अनइक्वल मतलब फ्लिप करने से इक्वल हो जाएगा, राइट? मैंने एक सबस्ट्रिंग ढूंढा जो अनइक्वल था, ऑब्वियसली इफ आई फ्लिप इट विल करेक्ट इटसेल्फ. सो तुम्हें उसके लिए क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कि ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला जो इंडेक्स है शुड बी मार्क्ड. दैट मीन्स यहाँ तक जो है, यहाँ तक जीरोज़ एंड वंस का काउंट सेम होना चाहिए. देन वंस यू फ्लिप ये वाला प्रीफिक्स, यू वांट कि ये वाला प्रीफिक्स भी फ्लिपेबल होना चाहिए, शुरू के 3 वाला.
सो दैट इवेंचुअली तुम्हारे लास्ट जो एंड के जो 3 डिजिट्स है दैट रिमेन फ्लिप्ड. नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द फाइनल सोल्यूशन. हाउ डू वी सॉल्व दिस नाउ? एक बार तुम्हें पता चल गया राइट कि कौन कौन से मार्क्ड है. ठीक है, ले लो जैसे ये वाले प्रॉब्लम में कौन से इंडेक्स मार्क थे. फर्स्ट इंडेक्स वॉज मार्क्ड एंड 0 1 2 3 4 5 6 7th इंडेक्स वॉज मार्क्ड. सो अभी जब भी तुम्हारे पास एक अनइक्वल वो दिखता है लाइक यू आर कंपेयरिंग ए एंड बी. ठीक है, तुम्हें ए भी दिया है बी भी दिया है, तुमने इटरेटर लगाया एंड तुम उस इटरेटर में आगे जा रहे हो. ठीक है, एक पॉइंट आता है जहाँ तुमने देखा कि अच्छा ये दोनों अनइक्वल है. कोई भी एक रैंडम सिंगल इंडेक्स मिला जो तुम्हें जो अनइक्वल है. सो व्हाट यू विल फर्स्ट ट्राई इज कि कैन आई फिक्स दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज जब भी तुम्हारे पास से कोई भी अनइक्वल कैरेक्टर आता है और फर्स्ट यू विल ट्राई टू चेक इज कैन आई लाइक जैसे ये कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लो 0 1 1 0 1 ये सब सही चल रहा था 0 1 1 यहाँ एक 1 आ गया देन 0 0 1 ऐसा कुछ हो गया. ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज़ जब तुम्हारे पास एक ऐसा सिनारियो आया, ये मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, ऐसा सिनारियो आया जहाँ तुम्हारा कुछ अनइक्वल है. व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज़ यू हैव टू चेक कैन आई फ्लिप दिस प्रीफिक्स एंड इफ़ आई कैन ऑल्सो फ्लिप दिस पर्टिकुलर प्रीफिक्स. इज़ इट पॉसिबल टू डू दैट? अगर पॉसिबल है तो यू विल ऑब्वियसली करेक्ट दिस, अदरवाइज तुम अपना एक पॉइंटर यहीं रखोगे. अभी तुम्हें इसे फिक्स करना ही, सो यू कैन नॉट स्किप दिस पर्टिकुलर थिंग. एक बार तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा कुछ अनइक्वल है तो तुम उसे ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते. लाइक यू कैन नॉट सॉरी नॉट फ्लिप, यू कैन नॉट जस्ट स्किप दैट थिंग. तुम्हें आगे जाना पड़ेगा जब तक ऐसा सिनारियो आ नहीं जाता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ अभी अगर इसका अगर एक फाइनल कंक्लूजन लगाए राइट. ठीक है, इसका हमें अगर पता चल गया, मैं ऐसे कंपेयर करते जा रहा था. ठीक है, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 इसमें बी का कुछ रोल नहीं तो नीचे बी नहीं लिखते. मुझे पता चल गया ये वाला चीज़ जो है ना ये वाला बिट दिस इज़ अनइक्वल, ये अपने बी के साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा. सो इसको सही करने के लिए मेरे को 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट है. ये वाला इंडेक्स जो है ना ये मार्क्ड होना चाहिए ऑब्वियसली राइट. अगर मैं अभी यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, मार्क्ड का मतलब क्या है, मीन्स यू कैन फ्लिप दैट पर्टिकुलर प्रीफिक्स. तो अगर मुझे इसको ठीक करना है मेरे टोटल 2 ही रिक्वायरमेंट्स है. एक तो इससे पहले वाला जो पूरा प्रीफिक्स है ना ये फ्लिपेबल होना चाहिए क्योंकि ये कोलैटरल डैमेज आएगा एंड मुझे इसको वापस फ्लिप करने का रहना चाहिए. लाइक आई शुड हैव दी एबिलिटी टू डू दैट. तो ये वाला चीज़ मार्क्ड रहना चाहिए. एंड अगर मुझे बस इसको ही ठीक करना है तो आई विल ऑलवेज चेक आर यू ऑल्सो मार्क्ड. मैं इसको पूछूंगा कि तू भी मार्क्ड है क्या. मार्क्ड मतलब आर यू फ्लिपेबल, ये वाला जो प्रीफिक्स है फ्लिपेबल है क्या. अगर वो बोलते हैं हाँ तो आई विल फ्लिप दिस देन अगेन आई विल फ्लिप दिस, मेरा ये करेक्ट हो जाएगा. बट दैट वोंट ऑलवेज बी द केस राइट. सो तुम्हें अपना ये वाला पॉइंटर ना आगे बढ़ाते रहना है. लाइक यू हैव टू रन अ वाइल लूप फ्रॉम दी फर्स्ट अनइक्वल कैरेक्टर. अभी अगर ले लो तुम्हें यहाँ पर एक और अनइक्वल मिला, बोलता है लाइक ये भी बोलता है कि मैं अनइक्वल हूँ. आई विल अगेन रन दी सेम चेक. ये तो यहीं रहेगा, ये वाला जो मार्कर है ये तो यहीं रहेगा क्योंकि वो तो मार्क्ड होना ही चाहिए. अगर इससे पहले वाली चीज़ ही मार्क्ड नहीं हुई, जो तुम्हारा फर्स्ट अनइक्वल चीज़ मिली थी उससे पहले वाली चीज़ें अगर मार्क्ड नहीं हुई मतलब वो फ्लिप नहीं हो सकता है. दैट मीन्स यू आर डन, यू विल हैव टू रिटर्न अ नो क्योंकि उससे पहले वाली चीज़ फ्लिप होनी चाहिए क्योंकि वो एज अ कोलैटरल डैमेज आएगा एंड मुझे बाद में उसको फ्लिप करना आना चाहिए. नाउ अभी तुम्हें पता चल गया फर्स्ट इनइक्वालिटी कहाँ पे आई है. अभी तुमने उस इनइक्वालिटी को वहीं पे रखा एंड तुम अपना पॉइंटर आगे लेते गए जब तक तुम्हें ऐसा केस नहीं मिल जाता कि आई कैन फिक्स दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग. तो फिर इसने ही बोला हाँ मैं भी अनइक्वल हूँ तो आई विल अगेन चेक कि क्या तू मार्क्ड है. व्हाट डज़ दैट मीन? आई विल चेक कि ये वाला प्रीफिक्स जो है क्या मैं इसको क्या मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ एंड देन अगेन मैं इसको फ्लिप कर दूंगा तो मेरे ये दोनों फिक्स हो जाएंगे. सो मैं तब तक ट्राई करते जा रहा हूँ, आगे जाते जा रहा हूँ जब तक कोई बोलता है कि हाँ मैं भी मार्क्ड हूँ और मैंने तो कंफर्म कर ही लिया था कि ये वाला एरिया भी मार्क्ड है. आई कैन ईजिली फ्लिप दैट. तो बीच वाला जो सबस्ट्रिंग है वो मेरा वो मेरा अच्छे से फ्लिप हो जाएगा. दिस इज़ द फर्स्ट केस. ये तुम्हें मिल गया तो सही है, तुम ऐसे वाइल लूप चला रहे हो तुम्हें मिल गया वो बहुत सही है. व्हाट इफ तुम्हारी स्ट्रिंग ही ख़त्म हो गई. ठीक है, तुम्हारी स्ट्रिंग ही ख़त्म हो गई या तुम्हें एक इक्वल कैरेक्टर मिल गया. तो ये बोल रहा था यार मैं मैच नहीं कर रहा नीचे वाले के साथ, ये भी बोल रहा है मैं नीचे वाले के साथ मैच नहीं कर रहा. भाई नीचे वाला आई मीन बी. तो अगर तुम्हें अच्छे से समझना है तो 0 1 1 0 0 0 तो ये 0 0 दोनों 1 1 के साथ मैच नहीं हो रहे थे. ठीक है, वही जो मैंने बोला ना इनइक्वल है तो मैं ऐसे बी भी लिख के दिखा दिया. सो दिस इज़ माई बी इन दिस होल एग्जाम्पल क्योंकि बी का कुछ एग्जाम्पल लाइक बी का कुछ इतना पॉइंट नहीं है अनटिल अनलेस यू नो कि क्या इनइक्वल है. नाउ ये जो 2 ज़ीरोज़ आए मेरे अभी मुझे ठीक है ये दो 1 1 इसके साथ मैच नहीं कर रहे 0 0 के साथ. अभी ये जो 0 आया ना ये बोल रहा है यार मैं तो मैच कर रहा हूँ. वो बोल रहा है कि आई एम एट अ गुड प्लेस, मेरे को कुछ फ्लिप का कुछ नीड नहीं है तो मुझे फ्लिप मत करो, डोंट इंक्लूड मी इन योर सबस्ट्रिंग. तो ये दोनों का हो गया लाइक ये दोनों अभी कुछ नहीं कर सकते ये दोनों क्योंकि ये दोनों सबस्ट्रिंग क्या ट्राई कर रहे थे कि हम आगे तक जाएंगे जो इनइक्वल है उनको अपने सबस्ट्रिंग ग्रुप में ऐड करते जाएंगे. जैसे ही एक सबस्ट्रिंग मिलेगा जो मार्क्ड है
वहाँ से पूरा फ्लिप करेंगे, जो फर्स्ट इनइक्वल था उसके लेफ्ट वाला फ्लिप करेंगे, पूरा सबस्ट्रिंग फ्लिप हो जाएगा, देयरफॉर तुम्हारा वो जो सबस्ट्रिंग इनइक्वल था वो सही आ गया। अभी आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट केस को सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करो। बट ऐसे करते करते हम जब आगे गए, एक एक कैरेक्टर आया जो बोल रहा है यार मैं सही पोजीशन में हूँ और मुझे फ्लिप नहीं करना है। तो ये दोनों अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने सारे पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर लिए। लाइक वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम हर सबस्ट्रिंग को इंक्रीज़ करते जा रहे थे। जैसे ही हमें कुछ मिलता हम ऑब्वियसली उसको इंक्लूड कर लेते, बट हमें वो मिला ही नहीं। सो दीज आर दी टू केसेस वेर यू विल बी प्रिंटिंग अ नो। येस तो तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा। अगर तुम्हें यही वाला स्ट्रिंग जो होता है ना, ये वाला स्ट्रिंग बोलता कि यार मैं ऑलरेडी मार्क टू, मतलब मैं मार्क टू, वो अगर बोलता तो ये बोलता बहुत सही, हम तेरे को लेके पूरा फ्लिप करते प्रीफिक्स तक, और मुझे पता है कि मेरे पहले वाला जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो मैं उसको भी मार्क करता, मेरे ये दोनों सही हो जाते, आंसर इवेंचुअली आगे जाकर कोई इशू नहीं आता तो येस हो जाता। नो कब कब आ सकता है, तुमने एक चेक किया, तुम आगे और इंडेक्सेस ऐड करते जा रहे थे, या तो स्ट्रिंग खत्म हो गई, तुम्हें चांस ही नहीं मिला लो को फ्लिप करने का, या तो तुम्हारा इनइक्वल कैरेक्टर आ गया, या फिर तुम्हारा एक ऐसा कैरेक्टर आ गया जो बोल रहा है यार मैं सही प्लेस में ऑलरेडी हूँ। तो ऑब्वियसली तुम वापस अपना वो पूरा वाइल लूप ब्रेक कर दोगे एंड तुम बोलोगे कि यार नहीं, आंसर नहीं आ सकता, हम ये वाले सबस्ट्रिंग को फिक्स नहीं कर सकते। सो दैट्स दी होल सोल्यूशन। तुम्हें पहले ये ट्रैक रखना है कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस चेंज हो सकते हैं, एंड देन यू विल हैव टू प्ले विद दोज। तुम्हें उन्हें पहले मार्क कर देना है। मैंने मैप यूज़ किया था, आई शो यू माई कोड नाउ, एंड देन यू विल हैव टू जस्ट चेक कि अगर ये मार्क्ड है तो लेट्स ट्राई एंड गो अहेड वाइल लूप लगा के। इफ लाइक लेट्स जस्ट मूव टू द कोड नाउ, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो नाउ इफ़ यू लुक एट द कोड, मैंने मार्क्ड वाली चीज़ को हैंडल करने के लिए इफ़ यू सी मैंने एक मैप मेंटेन किया क्योंकि मुझे -1 को ही मार्क करना था, बट देयर आर मैनी अदर वेज। तो 1 बेस्ड करते तो भी तुम ईजिली कर सकते थे, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। एंड मैंने ज़ीरो काउंट और सॉरी एक वंस काउंट एंड ज़ीरो काउंट रखा है। सो आई एम इटरेटिंग ओवर दैट स्ट्रिंग, एंड जब मेरा ज़ीरो काउंट और 1 काउंट मैच हो रहा है, आई एम मार्किंग दैट पर्टिकुलर इंडेक्स एज ट्रू। मैंने -1 को ट्रू इसलिए मार्क करके रखा है क्योंकि 0 से पहले आई एम सेइंग इट्स ऑलरेडी मार्क्ड। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट, वही जो मैंने कोड में समझाया उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। सो करंट इनिशियल तुम 0 पॉइंट से स्टार्ट करोगे, सो वाइल करंट इज लेस देन 0, वाइल करंट इज लेस देन n, तुम्हें अपना फर्स्ट इनइक्वालिटी मिल गया, वही जो मैंने तुम्हें कोड में बताया था। सो ये वाला फर्स्ट इनइक्वालिटी तुम्हें जो मिला ये वही है, ए करंट इज़ नॉट इक्वल टू बी करंट। अभी उसके अंदर तुम्हें खेलना है क्योंकि तुम्हारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो वाला इंडेक्स फिक्स नहीं हो जाता। अभी उसके लिए तुम्हें आगे थोड़े और लोगों को ग्रुप में लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट चीज़ जो मैं चेक करना है दैट इज़ जो तुम्हारा फर्स्ट इनइक्वालिटी आया है उससे पहले वाला इंडेक्स शुड बी मार्क्ड। एंड वाई डू वी नीड दैट, इसलिए मैंने -1 को भी उसी रीज़न से मार्क किया था। एंड वाई डू वी नीड दैट, वही जो मैंने बताया था, तुम्हें अपने पहले वाले चीज़ जो कोलैटरल डैमेज आने वाला है, जो प्रीफिक्स तुम फालतू का फ्लिप करने वाले हो, तुम उसे वापस फ्लिप, यू शुड बी एबल टू लाइक फ्लिप इट अगेन। दैट्स वाई तुम्हारा करंट -1 शुड बी मार्क्ड। अदरवाइज अगर वो मार्क नहीं है तो तुम्हें ऑब्वियसली नो रिटर्न करना, क्योंकि तुम्हारा कुछ डैमेज आएगा शुरू के प्रीफिक्स में जो तुम फिक्स नहीं कर सकते। अभी वाइल करंट इज लेस देन n, वही वाले केसेस जो मैंने तुम्हें अभी पूरा एक्सप्लेनेशन के टाइम बताया, एंड तुम्हें वही इंडेक्सेस को वापस तुम्हारे ग्रुप में ऐड करते जाना है जो बोल रहे यार मैं भी इनइक्वल हूँ। एंड जब तक मार्क्ड नहीं है, अभी दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, या तो तुम्हें एक मार्क्ड नोड मिल गया, अगर तुम्हें एक मार्क्ड नोड मिल गया तो वेल एंड गुड, तुम वहाँ से फ्लिप करो, करंट -1 से भी एक फ्लिप करो, तुम्हें अपना आंसर मिल गया, देयरफॉर यू आर गुड टू गो। तुमने वो वाला जो भी इनइक्वल सबस्ट्रिंग था ना, तुमने वो फिक्स कर दिया। बट वॉट इफ तुम्हारा करंट ही n के बाहर चला गया, या फिर तुम्हें एक ऐसा स्ट्रिंग मिल गया जो इक्वल है, यू आर डन राइट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट सबस्ट्रिंग जो तुम्हारा डैमेज था, यू विल हैव टू रिटर्न अ नो। सो अगेन सी आउट नो एंडल, एंड इवेंचुअली यू विल हैव टू डू अ ++। सो वही है जो मैंने समझाया, एग्जैक्ट रेप्लिका, स्टार्ट फ्रॉम वो, अपने साथ जो भी ख़राब थे उनको जोड़ो। अगर तुम्हें एक ऐसा मिल गया जो बोल रहा है कि मेरे से फ्लिप पॉसिबल है, ट्राई दैट, एंड तुम्हारे पीछे वाला जो स्ट्रिंग था जो डैमेज हुआ था उसको लो, तुम्हारा सब स्ट्रिंग फिक्स हो गया। अदरवाइज यू आर डन, लाइक तुम कुछ और कर नहीं सकते इफ़ द स्ट्रिंग एंड्स और इफ़ यू गेट एन इक्वल कैरेक्टर। वाइल अ नंबर इज़ नॉट गुड, एंड तुम ऐड भी कर रहे थे, तुम्हें अच्छा कैरेक्टर मिला ही नहीं, एंड तुम्हारे स्ट्रिंग खत्म हो गया या फिर इक्वल कैरेक्टर मिल गया, सो यू आर डन, यू विल हैव टू प्रिंट नो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू।